اللہ تعالی نہایت ہی عظیم ہستی ہے۔ اس نے ہر چیز اپنے کلام کے وسیلے سے خلق فرمائی۔ جب ہم زمین و آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم خالق کائنات رب العالمین کی حمد کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور قدرت کی مظہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے پودے اور حیوانات پیدا کیے۔ چنانچہ خالق کائنات نے زمین کی خاک سے دنیا میں سب سے پہلے انسان کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی اور یوں وہ جیتی جان ہو گیا۔ اس پہلے انسان کا نام آدم تھا۔ پھر خالق کائنات نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور ان کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر اس سے بی بی حوا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو ایک خوبصورت باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں مسرت اور شادمانی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے سوا تمام درختوں کا پھل تم کھاؤ، لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ شیطان نے بی بی حوا کو وہ پھل کھانے پر اکسایا، یوں انہوں نے وہ پھل توڑا اور کھا لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور گنہگار اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت ارضی سے نکال دیا۔ ان کی نافرمانی ان کے اور تمام نسل انسانی کے لیے شرمندگی اور موت کا باعث بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو غفور الرحیم ہے، نسل آدم کو اپنی رفاقت میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ اس کی رفاقت کی بحالی کے منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر بھی اپنے منصوبے کا کچھ حصہ ظاہر کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو برکت بخشنے اور ان کے وسیلے سے اقوام عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہاری نسل کو خاک کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا اور انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کہ وہ اس کے احکام کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے عزیز فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلے گی، تو بھی انہوں نے خداوند کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کی۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرا حکم مانتے اور مجھ سے ڈرتے ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک مینڈھا دیکھا جس کی سینگ ایک جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ مینڈھے کو اپنے بیٹے کے بدلے فی سبیل اللہ قربان کر دیا۔ خدائے رحیم و کریم نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے عوض مینڈھا مہیا کر کے انسانوں سے اپنی عظیم محبت کا اظہار کیا، ویسی ہی محبت جیسی ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے گناہوں کے عوض ایک قربانی کے انتظام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک معصوم شخصیت کو بھیجے گا
کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کے عوض قربان ہو اور ان کا احساس شرمندگی دور کر دے۔ وہ اس عظیم قربانی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کے لیے پروردگار سے رشتہ جوڑ دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی قربت میں رہیں۔ انبیاء اکرام نے اس شخصیت کو مسیحا کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اور خدا کی نمائندگی کرنے والے کی حیثیت سے ان کا حاکم ہو۔ آمد مسیحا سے کئی سو سال پیشتر انبیاء اکرام نے بتایا تھا کہ آنے والا مسیحا کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسیحا سے یہ کہے گا کہ تم میرے فرزند ہو۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسمانی بیٹے ہوں گے، بلکہ کلام اللہ میں آیا ہے کہ وہ ازلی کلمت اللہ ہیں۔ آپ کی ولادت ایک کنواری بی بی حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے ہوئی۔ انبیاء اکرام نے جب ابن خدا کی اصطلاح استعمال کی تو اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسیحا کے قریبی تعلق کو بیان کیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں کے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ انبیاء اکرام نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کی کہ ایک کنواری بی بی امید سے ہوگی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ انبیاء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ مسیحا کی ولادت بیت اللحم میں ہوگی۔ مسیحا یروشلم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ مسیحا کا قریبی رفیق انہیں چاندی کے 30 سکوں کے عوض گرفتار کروا ڈالے گا۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ مسیحا اپنی جان قربان کر دیں گے مگر خدا قادر مطلق انہیں تیسرے دن پھر سے زندہ کر دے گا۔ حضرت دانیال نے مسیحا کو آدمزاد کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر عرش معلیٰ تک پہنچ جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں سارے جہاں کے لوگوں پر اختیار بخشے گا۔ 2000 برس پہلے ایک ایسی ہی شخصیت اس دنیا میں آئی جس کا اسم مبارک عیسیٰ المسیح تھا، جنہیں یسوع المسیح بھی کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے ان کے عجیب کام دیکھے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ کیا یہی مسیحا ہیں؟ انبیاء اکرام نے جو کچھ آنے والے مسیحا کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ المسیح کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ اس فلم میں ایک شخص حضرت عیسیٰ المسیح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں تو ایسا کرنے کے لائق کوئی بھی نہیں، لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ مسیحا کی حیات طیبہ کے متعلق جان سکیں اور وہ برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ اے معزز تھیوفلس، میں ان سب باتوں کو تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک اور ترتیب وار لکھتا ہوں جو ہمارے درمیان وقوع پذیر ہوئیں، تاکہ تمہیں ہر ایک بات سے متعلق معلوم ہو جائے۔ جن ایام میں قیصر اگسطس روم کا حکمران تھا اور ہیرودیس اعظم یہودیہ کا بادشاہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناصرت کی ایک کنواری حضرت مریم صدیقہ کے پاس بھیجا۔ اے مریم، خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ امید سے ہوں گی اور بیٹے کو جنم دیں گی۔ آپ اس کا نام عیسیٰ المسیح رکھنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کنواری ہوں۔ روح پاک آپ پر نازل ہوگا اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس کلمت اللہ کہلائے گا اور اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی۔ حضرت مریم اپنے رشتہ دار حضرت الیشبا سے ملنے گئیں جو عمر رسید اور بانجھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں امید بخشی۔ الیشبا، مریم، میری بہن مریم، آپ تمام عورتوں میں مبارک ہیں۔ آپ سے ہونے والا بچہ بھی مبارک ہے۔ جو ہی میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی، میرے پیٹ میں بچہ خوشی سے اچھل پڑا۔ میری جان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دہندہ خداوند کریم سے خوش ہے۔ اب سے لے کر آنے والی تمام پشتوں کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ ناصرت کے رہنے والے لوگوں، سنو کہ قیصر اگسطس کے حکم سے ان علاقوں میں جن کا وہ حکمران ہے یعنی جلیل اور یہودیہ میں مردم شماری ہوگی، جس کی وجہ سے سب لوگ ان علاقوں میں جا کر اپنے اپنے نام لکھوائیں جن علاقوں میں ان کے آبا و اجداد پیدا ہوئے تھے۔
लिहाजा हजरत यूसुफ भी अपनी मंगेतर हजरत मरियम सिद्दीका के साथ यहूदिया के एक गांव बैतुल्लहम में अपने नामों का इंदराज करवाने गए। लेकिन बैतुल्लहम में उनके लिए कोई जगह न थी, और अगर ठहरने के लिए उनको कोई मकाम मिला भी तो वो जानवरों के बांधने की जगह थी। अब मुल्क के इस इलाके में कुछ चरवाहे थे जो रात के वक्त अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक अल्लाह ताला के एक फरिश्ते का उन पर ज़हूर हुआ और अल्लाह ताला का नूर उनके चौगिर्द चमका। आज हजरत दाऊद के शहर बैतुलहम में एक निजात दहिंदा की विलादत हुई है जो कि हजरत ईसा अल मसीह है। ये चरवाहे इस मासूम बच्चे को देखने के लिए खुरली की तरफ रवाना हुए और निजात दहिंदा की विलादत से मुताल्लिक खुशखबरी सुनाने वाले सबसे पहले लोग ठहरे। एक हफ्ते बाद जब आपके खतने का वक्त आया तो आपका नाम ईसा अल मसीह रखा गया। हजरत यूसुफ और हजरत मरियम आपको यरूशलेम ले गए ताकि आपको खुदावंद ताला के हुजूर पेश किया जाए। बैतुल मक़दिस में एक निहायत ही बुजुर्ग और परहेजगार शख्स थे जिनका नाम शमून था। रूह पाक ने उनसे वादा किया था कि वो उस वक्त तक मौत का मजा न चखेंगे जब तक कि वो मसीहा का दीदार न कर लें। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, अब अपने खादिम को अपने वादे के मुताबिक इत्मीनान से रुखसत फरमा। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात को देख लिया है। ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। उन्होंने अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। फिर कुछ अरसे बाद वो नासरत में अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए। जब हजरत ईसा अल मसीह 12 साल के हो गए तो हजरत यूसुफ और हजरत मरियम उन्हें ईद फसह मनाने के लिए यरूशलेम ले गए। लेकिन जब वो वापस आने लगे तो उनका ख्याल था कि हजरत ईसा अल मसीह उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हजरत ईसा अल मसीह पीछे रह गए थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर आए और 3 दिन के बाद उन्होंने आपको यहूदी मजहबी उलामा के साथ बैठा पाया। ये किसका बच्चा है जो ऐसे सवाल करता है? ये हमारा बच्चा है, हम समझे कहीं खो गया है। इसे माफ फरमाइए। जिन लोगों ने हजरत ईसा अल मसीह की बातों को सुना वो हैरान हुए। बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? हम इंतहाई परेशानी के आलम में आपको तलाश करते रहे। मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? आपको मालूम नहीं कि मुझे रब की मर्जी को बजा लाना है? और हजरत ईसा अल मसीह उनके साथ नासरत आए और वो कदो कामत और हिकमत में बढ़ते और ज़ाते इलाही और इंसान की नज़र में मकबूल होते गए। तिबरियुस कैसर की हुकूमत के 15वें साल, जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर था और हेरोदेस जलील का हाकिम था, हन्ना और कायफा अहले यहूद के सबसे बड़े इमाम थे। उन दिनों हजरत याहिया अल्लाह ताला की तरफ से मबूस हुए और वो दरियाए उर्दुन के किनारे तबलीग करने लगे कि अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा करो और पानी में पाक गुस्ल लो। लोगों, अपनी बुरी रविशों से बाज आओ और पाक गुस्ल लो तो अल्लाह ताला आपके गुनाह बख्श देगा। जैसा कि हजरत इशाया नबी के सहीफे में मरकूम है, बेअबान में पुकारने वाला कहता है, अपने मालिक के लिए राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे
اور جو ناہموار ہے ہموار کیا جائے گا، اور ہر فرد بشر گناہوں سے نجات پائے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیے ہم کیا اے کریں؟ سانپ کے بچوں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ ہماری مدد فرمائیے اور بتائیے کہ کون سی راہ پر چلیں۔ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک کرتا ایسے شخص کو دے دے، جس کے پاس نہیں، جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے۔ اے مالک، ہم تو محصول لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لیں۔ اور ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ کسی سے بھی زبردستی پیسہ نہ لیں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، اپنی تنخواہ پر گزر بسر کریں۔ ہمیں بتائیے، کیا آپ المسیح ہیں؟ میں تمہیں پاک غسل دیتا ہوں، لیکن آنے والا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ میں تو ان کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح پاک اور آگ سے پاک غسل دیں گے۔ وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ شریروں کو نیک لوگوں سے جدا کریں۔ اور روح پاک کبوتر کی صورت میں حضرت عیسیٰ المسیح پر آن ٹھہرا۔ اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا کلمہ ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ آپ روح پاک سے معمور ہو کر دریائے اردن سے واپس لوٹے اور روح پاک کی رہنمائی میں بیاباں کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر آپ 40 دن تک ابلیس کے ذریعے آزمائے گئے۔ اس دوران آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اور ابلیس نے حضرت عیسیٰ المسیح سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تو کلمت اللہ ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ کلام اللہ سے جیتا رہے گا۔ تب ابلیس آپ کو ایک بلند مقام پر لے گیا اور لمحہ بھر کے لیے آپ کو دنیا بھر کی ساری سلطنتیں دکھائیں۔ میں یہ سارا اختیار اور دولت تمہیں دے دوں گا کیونکہ یہ سب میرے اختیار میں ہے اور میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے سجدہ کرو تو یہ سب میں تمہیں دے دوں گا۔ لکھا ہے کہ اپنے رب ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ آخر میں ابلیس آپ کو شہر یروشلم لے گیا اور بیت المقدس یعنی ہیکل کے سب سے اونچے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ اگر تو کلمت اللہ ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ تجھے سنبھال لیں اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو پتھروں سے چوٹ نہ لگے۔ کلام اللہ میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی آزمائش نہ کر۔
फिर यूं आप नासरत में वापस तशरीफ लाए जहां पर आपने परवरिश पाई थी। आदाब। आदाब। आप हस्ब दस्तूर हफ्ते के रोज जो सबत कहलाता है इबादत गाह में गए। और आपको हजरत इशाया के सहीफे से तिलावत करने के लिए दावत दी गई। यकीनन रूह पाक मेरे साथ है। उसने मुझे चुना है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई बख्शूं, जो जुल्म उठाते हैं उन्हें आज़ाद कराऊं और ऐलान करूं कि परवरदिगार की तरफ से नजात का वक्त आ गया है। ये सही कहता है। अल्लाह ताला का वो वादा जो आपने सुना पूरा हुआ। पेशन कोई पूरी हो गई? ये वादा तो अल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम ये कैसे जाने? इसमें शक नहीं कि तुम मुझसे कहोगे, ऐ हकीम अपने आप को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे कि तुमने जो कुछ कफरे नहूम में किया अपने शहर में भी करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। हजरत ईसा ने अपने आप को इन अल्फाज के जरिए मसीहा जाहिर किया कि अल्लाह ताला ने मसीह मऊद को लोगों की निजात के लिए भेजा। यहूदी उन्हें बतौर मसीह मऊद कबूल नहीं करते थे। उन्होंने आपको एक ऊंची जगह से गिराने की कोशिश की, लेकिन आप हुजूम से तशरीफ ले गए और अपनी राह ली। और जलील के एक शहर कफरे नहूम में तशरीफ लाए। अहले रोम का तसल्लुत सारे मुल्क पर था और लोग इस बात के मुश्ताक थे कि अल मसीह आकर उन्हें रोमी मजालिम और तसल्लुत से छुड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमून, क्या मैं कश्ती में आऊं? क्यों नहीं मालिक। ये यहाँ से जाने तो नहीं लगे। हमसे बात कीजिए। हमसे बात कीजिए। मालिक हमें सिखाएं। दो शख्स बैतुल मक़दस में नमाज अदा करने गए। एक आलिम दीन, दूसरा महसूल लेने वाला। आलिम दीन खड़ा होकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी लोगों की तरह लालची, बददयानत और जिनाकार नहीं हूं, और तेरा शुक्र करता हूं कि मैं उस महसूल लेने वाले की तरह भी नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी आमदन का 10वां हिस्सा भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाला अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ, बल्कि अपना सीना पीट पीट कर कहा, ऐ अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह आलिम दीन नहीं बल्कि महसूल लेने वाला था जिसकी दुआ सुनी गई। अपने आप को बड़ा बनाने वाला छोटा किया जाएगा, और जो खाकसार है सर बुलंद होगा। अपनी कश्ती गहरे पानी में ले चलो, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर जाल डालो। ऐ मेरे मालिक, सारी रात हमने मेहनत की मगर एक मछली भी न पकड़ी।
फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, कश्ती लाओ और हमारी मदद करो, जल्दी करो, हम तो पहले ही मसरूफ हैं। मालिक, आप तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। तुम घबराओ नहीं, अब तुम आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो तो तुम जिंदा रहोगे। जब तक अल्लाह ताला मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। बुरा आदमी अपनी राह तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो परवरदिगार की तरफ रुजू लाए और रब्बुल इज्जत उस पर रहम करेगा, क्योंकि हमारा खुदा गफूर रहीम है। तुम खुशी के साथ बाहर जाओगे और सलामती से वापस लौटोगे। वो तशरीफ ला रहे हैं, देखिए आ गए हैं। हजरत ईसा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मालिक रहम के रहे, वो 12 बरस की है और बरदे वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। यार, अफसोस है कि मालिक, तेरी बेटी मर गई है। मालिक को तकलीफ ना दो। तू परेशान ना हो, ईमान ला तो वो ठीक हो जाएगी। तुम रो मत, ये सो रही है, मरी नहीं है। बेटी, उठ जाग। इसे कुछ खाने को दो। जरा सुनो, किसी से इसका जिक्र मत करना। इसके बाद हजरत ईसा अल मसीह ने लावी कबीले के महसूल लेने वाले एक शख्स को देखा जिसका नाम मत्ती था, जो चुंगी पर महसूल लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे पीछे आ।
और हजरत ईसा अल मसीह एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और सारी रात वहां पर जिक्र इलाही में गुजार दी। सूरज तुलू होने पर आपने 12 पैरोकारों को चुना और उन्हें अपने सहाबा होने का शर्फ बख्शा। हजरत शमऊन, जिनका नाम आपने हजरत पतरस रखा, और उनके भाई हजरत इंद्रियास और हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना और हजरत फिलिपस और हजरत बरतुलमाई और हजरत मत्ती और हजरत तूमा और हल्फई के साहबजादे हजरत याकूब और हजरत शमऊन जो जेलुतीस भी कहलाते हैं और हजरत याकूब के भाई हजरत यहूदा और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में हजरत ईसा अल मसीह को गिरफ्तार भी करवाया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम ही जन्नती होगे। तुम भूखे हो तो मुबारक हो, क्योंकि आसूदा होगे। तुम रोते हो तो मुबारक हो, क्योंकि तुम हंसोगे। जब लोग बेइज्जत करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम मुबारक हो। और जब मेरी वजह से तुम्हें बुरा कहें, उस वक्त तुम शादमान होना और खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इनके बुजुर्गों ने भी अंबिया के साथ ऐसा ही किया था। 16, 17, 18, 19, 20 मेरे पास यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम तसल्ली पा चुके। ये अमीर नहीं बनना चाहता, ये कोई पागल ही होगा। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे और मातम करोगे। जब लोग तुम्हें नेक कहें तो अफसोस। उनके बुजुर्ग झूठे नबियों के मुतालिक यही कहते थे। तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, दुश्मन से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भला करो, लानत करने वालों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हें तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट लेना चाहे तो उसे कमीज भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगता है उसे दो। अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो फिर वापसी के लिए ना कहो। वैसा ही करो जो चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें क्या बरकत मिलेगी? गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। अगर तुम उनके साथ नेक हो जो तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुम्हें कैसे बरकत मिले? क्योंकि गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का।
नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत और उनके साथ भला करो और वापसी की तवक्को के बगैर दो। इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यूं तुम खुदा के चुने हुए कहलाओगे, क्योंकि वो बुरों और नाशुकरों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जैसा कि तुम्हारे रब ने रहम किया है। ईसा मसीह हमें बचाइए। ऐबजुई न करो, तुम्हारी भी नहीं होगी। इल्जाम न दो, तुम्हें भी इल्जाम नहीं दिया जाएगा। माफ किया करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दूसरों को नापने वाले तुम भी नापे जाओगे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपनी भाई की आंख का तिनका देखने वाले, तू अपनी आंख की शैतीर को क्यों नहीं देखता? ए उस्ताद, हमें सिखाइए। मालिक, हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिससे आपकी विलादत हुई। इससे बढ़कर मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये मसीहा है? एक फरीसी ने हजरत ईसा अल मसीह को रात के खाने पर दावत दी। आप तशरीफ ले गए और उसके साथ खाना खाने बैठे। बच्चों, तुम यहाँ से चले जाओ। सुना है तुमने? जाओ। शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे मालूम नहीं। ये कर क्या रही है? अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो ये जान लेता कि ये खातून जो इसे छू रही है वो कौन है। तो ये जानता कि ये कैसी गुनाहगार है। शमून, मैं जानता हूं ये औरत कौन है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। दो आदमियों ने एक शख्स से कर्ज लिया। एक ने 500 और दूसरे ने सिर्फ 50 लिए। दोनों में से एक भी वापस नहीं कर पाया। उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? वो शख्स जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। तुम ठीक कहते हो। तो फिर इस औरत के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पांव धोने के लिए पानी न दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से साफ किए। तूने तो न चूमा, मगर ये औरत जब से आई है मेरे पांव को चूम रही है। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, लेकिन इसने मेरे पांव को मुअत्तर कर दिया। मैं तुमसे कहता हूं, इसकी ये मोहब्बत सबूत है कि इसके सारे गुनाह माफ हुए। जिसने थोड़ी माफी पाई, मोहब्बत भी थोड़ी करता है। तुम्हारे सारे गुनाह माफ हुए। ये कैसे कह सकता है? कैसे माफ कर सकता है? तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। और हजरत ईसा अल मसीह ये खुशखबरी देते रहे कि बख्शिश का दरवाज़ा खुलने वाला है। आपके 12 साहबी आपके साथ थे और इसी तरह कुछ खवातीन भी जिन्होंने बदरवाह से शिफा पाली थी। हजरत मरियम जो कि मजदल की रहने वाली थी, हजरत यूआना जिनके शौहर का नाम खोजा था और वो हेरोदिस के महल में काम करते थे, और हजरत सुसन्ना भी उनके साथ थी।
लेकिन हेरोदीस ने जो जलील का हाकिम था हजरत याहिया को कैद खाने में डाल दिया क्योंकि उन्होंने हेरोदीस को अपने भाई की बीवी के साथ नाजायज शादी करने पर मलामत की थी। तो फिर हम नाइन शहर के दरवाजे पर थे तो वहां से एक जनाजा आ रहा था। मुर्दा शख्स एक बेवा का इकलौता बेटा था। हजरत ईसा अल मसीह रहम से भर गए। चुनाचे आपने मैयत को छूकर फरमाया, ऐ जवान उठ खड़ा हो। वो उठा और हजरत ईसा अल मसीह ने उसे मां के हवाले किया। उनसे पूछो पूछो, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की राह देखें? मालिक, मालिक, हजरत याहिया ने दरियाफ्त किया है कि आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की राह देखें? तुमने जो कुछ देखा है याहिया को बताओ कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। मुबारक हैं वो जो शक नहीं करते। मुझे उठा लीजिए ना। ऊपर आ जा, अब देख सकते हो। मैं हजरत ईसा को देख सकता हूँ। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ राह के किनारे गिरा और पांव तले आया और परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन में गिरा। जब वो बीज उगा तो सूख गया, इसलिए कि उसको पूरी खुराक न मिली। और कुछ बीज खारदार झाड़ियों में गिरा। वो झाड़ियां भी उसके साथ बढ़ीं और इन झाड़ियों ने उसे दबा लिया। कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा, और जब इस जमीन में ये बीज उगा तो 100 गुना फल लाया। मालिक, लोगों के हुजूम में आप तमासील में क्यों बात करते हैं? तुम्हें अल्लाह ताला के भेदों का इल्म बख्शा गया है। दूसरों से तमासील में कलाम करता हूं ताकि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। इस तमसील के माने ये हैं, बीज अल्लाह का कलाम है। राह के किनारे वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन इब्लीस उनसे अल्लाह का कलाम छीन लेता है ताकि वो ईमान लाकर निजात ना पाएं। पथरीली जमीन वाला बीज वो लोग हैं जो अल्लाह की बातों को सुनते और कबूल करते हैं। उनकी जड़ें नहीं होती, ये आर्जी ईमान होता है, और जब वो आजमाइश में पड़ते हैं तो वो फिर जाते हैं। झाड़ियों में गिरने वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की फिक्रों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो दब कर रह जाते हैं। उनके लिए कलामुल्लाह बेफायदा है। और वो बीज जो अच्छी जमीन में गिरा, उससे मुराद वो लोग हैं जो कलामुल्लाह को सुनते और कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाते हैं। चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखते और ना चारपाई के नीचे, उसे चिरागदान पर रखते हैं ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो पोशीदा है जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ ढका हुआ है अयां किया जाएगा। तुम मोहतात रहो कि कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। मालिक, आपकी वालिदा और अजीज बाहर मुंतजिर हैं। मेरी माँ और अजीज वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते हैं और अमल करते हैं।
एक दिन हजरत ईसा मसीह अपने साहबा इकराम के साथ कश्ती में थे और उनसे मुखातिब होते हुए फरमाया, आओ अब हम झील के उस पार चलें। जब वो जा रहे थे तो हजरत ईसा मसीह कश्ती में सो गए। मालिक, मालिक, ईसा मसीह, हम मौत के मुंह में हैं। लहरें हम पर चढ़ आई हैं। मालिक, हमें बचा लीजिए। अब हम बच जाएंगे। आपका ईमान कहाँ है? फिर वो ग्रासीनियों के इलाके में आए जो जलील की झील के पार है। ईसा, ऐ कलमतुल्लाह, मुझसे क्या चाहते हैं? इल्तजा है, मुझे सजा न दें। तुम्हारा नाम क्या है? लश्कर, आपसे मिन्नत है, हमें अजाब में न डालें। उन सूरों के रेवड़ में भेज दे। अरे वापस आओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और ये बदरवाह उस शख्स में से निकलकर सुअरों में दाखिल हो गई। ए जादूगर, जा यहां से, हमें छोड़ दे। इस मकाम से चला जा, हमें छोड़, यहां से चला जा। मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे साथ जाने दे। तू अपने घर जा और बता कि खुदा ने कैसे नवाजा। हजरत ईसा मसीह और उनके साहबा इकराम अपने आप को हुजूम से अलग करके बैते सैदा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन हुजूम ये सुन के उनके पीछे हो लिया। बाद में दोपहर के वक्त हजरत पतरस फरमाने लगे, मेरे मालिक,
ان لوگوں کو بھیج دیں تاکہ یہ گاؤں کی طرف جائیں اور اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کریں، کیونکہ یہاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ہی ان کو کچھ کھانے پینے کو دو۔ ہمارے پاس تو صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ رب کائنات، تو جو بادشاہ ہے، تو برکت والا ہے، جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں؟ کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت یحییٰ ہیں، اور کچھ حضرت الیاس کہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے انبیاء میں سے ایک ہیں جو زندہ ہو گئے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ تو کلمت اللہ ہیں۔ یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ ضرور ہے کہ مسیح موعود دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ قلبي بشوق يا الله لك أنا أجيء بدموعي لك كل حنيني تم میں سے کون میرا پیروکار ہوگا؟ مالک میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن پہلے مجھے جانے دیں کہ گھر والوں کو اللہ حافظ کہہ آیا ہوں۔ جو کوئی بھی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے وہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ میرے پیچھے آنے والا اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے۔ اپنی جان بچانے والا اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ انسان ساری دنیا حاصل کرے مگر جہنم میں جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی مجھ سے اور میری تعلیمات سے شرمائے گا تو پھر جب میں بھی رب کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تو پھر میں بھی ایسے لوگوں سے شرماؤں گا۔ میں کہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ جب تک اللہ کی بادشاہت نہ دیکھیں وہ مریں گے نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح حضرت پطرس، حضرت یعقوب اور حضرت یوحنا کو پہاڑ پر دعا کرنے لے گئے۔
जब आप दुआ कर रहे थे तो आपका चेहरा चमक उठा और पोशाक सफेद हो गई। अचानक दो बुजुर्ग आपसे महवे गुफ्तगू हुए जो कि हजरत मूसा और हजरत इलियास थे। वो आसमान से जाहिर हुए थे। आप अल्लाह ताला के मंसूबे को पूरा करेंगे। आप यरूशलेम में इंतकाल करेंगे। वहां से रुखसत होते हुए हजरत पतरस आपसे मुखातिब हुए। मालिक, खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ हैं। यहाँ 3 खैमे बनाए, एक आपके लिए, हजरत पतरस के कलाम एक हजरत करने के मूसा, बाद एक बड़े गहरे बादल ने उन्हें छुपा एक हजरत लिया, इलियास के लिए। जिससे आपके साहबा घबरा गए और बादलों पर से एक आवाज आई, ये मेरा कलमा है जिसे मैंने भेजा है, इसकी सुनो। मालिक, ए मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए कुछ करे। मेहरबानी से मेरी मदद फरमाइए। वो मेरा एक ही बेटा है। आपके साहबियों से दरखास्त की कि वो इससे बदलू निकाले, मगर कुछ न कर सके। ऐ कम एतकाद और कजरो लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर बर्दाश्त करूंगा। बेटे को यहां लाओ। अरे, उसका चेहरा भी ठीक हो गया है। कैसी अच्छी बात है। दुआ सिखाइए जैसा कि हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ परवरदिगार, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुलता है। क्या तुम में से कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगने पर सांप देगा और या अंडा मांगने पर बिच्छू देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर परवरदिगार अपने मांगने वालों को
रूह पाक क्यों नहीं देगा? मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस बात की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, और ना ही अपने बदन की कि क्या पहनोगे, क्योंकि जान खुराक से और बदन पोशाक से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कौवों को देखो, न वो बोते और न काटते हैं और न ही उनका कोई गोदाम में है, तो फिर भी राज़िक उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो इन परिंदों से ज्यादा है। तुम में से कौन फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक पल का भी इजाफा कर सकता है? अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो फिर क्यों फिक्रमंद होते हो? इन पौधों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते। हजरत सुलेमान अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद इनकी तरह मुलब्बस नहीं थे। अगर अल्लाह घास को जो कल आग में जाएगी ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है, तो फिर वो तुम्हें क्यों अच्छी पोशाक न पहनाएगा? ऐ कम ईमान वालो, मालिक हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम में रत्ती बराबर भी ईमान होता और तुम कहते इस दरख्त से कि जड़ से उखड़ और जा समंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मानता। गुनाह करने के लिए आजमाइशें जरूर आएंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आई। किसी को गुनाह की तरफ माइल करने वाले के लिए अच्छा होता कि उसके गले में भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता ताकि वो डूब जाता। अल्लाह की बादशाही कैसी है? यह ऐसी है कि एक शख्स छोटा सा बीज लेकर खेत में बोता है, फिर ये उगता और दरख्त बनता है और उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करते हैं। पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? तंदुरुस्तों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको जो बीमार हैं। मैं इसलिए नहीं आया कि सिर्फ रास्तबाजों को बुलाऊं, बल्कि इसलिए कि गुनाहगार तौबा करें। ऐ मालिक, बादशाह क्या है? क्या कोई और भी बात है? डरो मत, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम अपना सारा माल बेचकर पैसा गुरबा में बांट दो और ऐसे बटवे लो जो पुराने नहीं होते, और तुम अपना माल आसमान पर जमा करो जहां वो कभी खराब नहीं होता। वहां चोर चोरी नहीं कर सकता, ना ही कीड़ा खराब करेगा। जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा दिल होगा। ऐ खातून, तुम अपनी बीमारी से शिफा पा गई हो। देखो देखो, वो ठीक हो गई है। ये मुर्सा है। देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, 18 बरस से। मालिक अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शफा के लिए तुम उन दिनों में से किसी दिन आओ, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं। ऐ मुनाफिकों, क्या तुम में से कोई हफ्ते के दिन अपने ढोर डंगरों को पानी पिलाने के लिए नहीं लेकर जाएगा? ये औरत औलाद इब्राहिम है और 18 बरस से शैतान ने इसे जकड़ रखा था। क्या हफ्ते के दिन इसका आजाद हो जाना मुनासिब नहीं है?
नेक उस्ताद, मुझे बताइए कि जन्नत में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो सिर्फ अल्लाह ही की जात है। मूसा की शरीयत से वाकिफ हो? तुम जिना न करना, न खून करना और न ही किसी पर इल्जाम लगाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सब कुछ तो मैं बचपन ही से करता चला आ रहा हूँ। तो भी तुझे एक और काम करना है। अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, फिर तुम्हें बहिश्ती खजाना मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे हो लेना। लेकिन हम तो ताजिर हैं, हम दौलतमंद हैं। किसी का जन्नत में दाखिल होना कितना मुश्किल काम है। एक अमीर आदमी का जन्नत में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। फिर कौन नजात पाएगा? जो इंसान के लिए नामुमकिन है, अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है। फिर बताइए ये सब कुछ कब होगा? ये अल्लाह की बादशाही? अल्लाह की बादशाही ऐसी नहीं जो देखी जा सके। कोई भी नहीं कहेगा कि देखिए वो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि वो तुम्हारे दिलों में आ चुकी है। वो वक्त आएगा जब तुम मसीहा की आमद की आरजू करोगे, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। जैसे आसमान पर बिजली चमकती हुई एक समत से दूसरी समत चली जाती है, मसीहा की आमद भी ऐसी ही होगी। लेकिन जरूर है कि पहले वो दुख उठाए और उसके हमअसर लोग उसे रद्द कर दें।